Yo, hi everyone, my name is Neet, and in this video I'll be talking about BitSat Math section, and I'll be providing you with a strategy by which you can pull off a great score in your BitSat Math section, right? Maximum weightage hota hai iska. And yes, if you're super weak or if you're looking for a video where you can brush up your mathematical skills, then this video is for you. Here I'll provide the easiest topics, the best resources, and the most essential topics as well, right? So सबसे पहला part, the first step in order to improve your maths is to consolidate or strengthen your foundational topics. फाउंडेशनल टॉपिक्स को बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड दे इंक्लूड द बेसिक कैलकुलस, लॉगरिथम, ट्रिगो आइडेंटिटीज एंड आईटीएफ, राइट? बेसिक कैलकुलस के सारे फॉर्मूले, इंटीग्रेशन, डेफिनेशन के, दे शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टीज और लॉग के जितने भी ग्राफ होते हैं वो सब याद होने चाहिए, ट्रिगो के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और ट्रिगो की सारे ग्राफ्स, राइट? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब सबको आता है। आईटीएफ के ग्राफ सबको याद होने चाहिए, जो टैन इनवर्स का है या तुम्हारा कॉट इनवर्स का है या जो कॉसेक इनवर्स का होता है, राइट? -1 to 1 पे अनडिफाइंड होता है वो सारी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए। एंड येस, इन क्वाड्रेटिक्स, नेचर ऑफ रूट्स, इन बेसिक ग्राफ्स अगेन सारे बेसिक ग्राफ सब याद होने चाहिए तुम्हें। एंड बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज विच इंक्लूड एपी, जीपी, एचपी के प्रॉपर्टीज एंड द सम ऑफ दो सीरीज। एंड देन एएम जीएम इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। Now why do I call these topics as foundational topics? Because ये सारे जो चीज़ें हैं ये मैथ्स के हर तीसरे मैनिपुलेशन में कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती है, राइट? तुम्हारा ए पी जी पी एच पी, ये तुम फिजिक्स में भी वो बॉल ड्रॉपिंग का क्वेश्चन होता है, वहाँ पे भी तुम्हारा सम ऑफ जी पी यूज़ होता है, राइट? आई टी एफ के क्वेश्चन ये डोमेन रेंज कैलकुलेट करने में यूज़ होते हैं। So these are not actually some topics that I want you to read, but these are those formulas that are implemented across multiple mathematical subtopics, right? तो हर तीसरे manipulation में तुम्हें ये कहीं ना कहीं use हो रहे होंगे, and if you do not do them, then you will probably lose interest in the subject, right? तो ये सबसे पहले करना है तुम्हें। Now, mathematics is subject can be very very exhaustive to prepare, considering it is so tricky and इतने सारे manipulations and intuitions are involved. And specifically talking about BitSat, which is so different from JEE means speed-based examination, you need really good resources to prepare for maths. And talking about the resources, so this year Fodu Club has launched BitSat 2025 Crash Course, where you'll be provided with dedicated PCM and English LR lectures that have been prepared by faculties who have got more than 10 plus years of industry experience, right? And yes, in the crash course itself, you'll be provided with the DPPs and the chapter-wise tests that are oriented specifically for BitSat. And yes, if you want to practice in a time-bounded fashion, then you can avail their mock tests where you'll be provided with 20 plus mocks through which you can, and it has got unlimited attempts, and they'll be providing you with a detailed subject-wise and time analysis of your mock, right? And yes, you can use my coupon code NIHIT7 to get a 10% scholarship. Now, the second thing you need to cover really quickly are the easy topics. And by easy topics, I mean those chapters which can be covered in less than a day of preparation. And the very essence of these chapters is कि अगर तुम ये topics नहीं करके आओगे तो कोई और करके आ जाएगा, right? Basically, most aspirants could solve these questions. And yes, if you're not doing it, then you're intentionally decreasing your percentile, right? So that can be very, very fatal. And those chapters include heights and distances, mathematical reasoning, linear programming, sets, relations and functions, and statistics. And yes, linear programming से मेरे को एक बात याद आई, like 2024 के किसी एक शिफ्ट में, I remember, बिटसाट की शिफ्ट में, देवर लाइक एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आ गए थे लीनियर प्रोग्रामिंग के। एंड नाउ जस्ट टेल मी एनी वन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? तो दैट इज वाई आई हैव कंसिस्टेंटली टोल्ड यू कि बिटसाट में सिलेबस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? तो अच्छी बात है कि अगर तुम ये सारे चैप्टर्स पहले गो ऑफ योर प्रेपरेशन में ही प्रिपेयर कर लो, राइट? Anyways, one more topic that you can add in the easy subtopics are mathematical reasoning. अब mathematical reasoning को मैंने पहले लिस्ट में इसलिए नहीं डाला because it has got a lot of subtopics that includes truth tables, statements, fallacy, contrapositive और भी बहुत सारे statement होते हैं, और डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो रीजनिंग वाज वन थिंग, एंड येस, यू डू नॉट हैव टू टेक नोट्स ऑफ एनीथिंग बिकॉज ये सारे फॉर्मूला लिस्ट, नोट्स एंड बिटसाट के रिसोर्सेज आई प्रोवाइड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, right? I'll paste the link in the comment sections. And yes, if you have got any doubt, you can DM me on my Instagram. Now, coming on to easy subtopics, easy topics part 2, and they include those topics जो कि NCERT को cover करके और बहुत सारे PYQs JEE के cover करके that will suffice your preparation. And these topics include matrices, determinants, inverse trigonometric functions, and vector space in 3D, right? Matrices में तो inverse, adjoint और addition subtraction तो नहीं पूछेंगे, और मल्टीप्लिकेशन तो केवल अगेन मतलब तुम्हारा इन्वर्स और एडजॉइंट में यूज हो जाता है, तो ये सारे टॉपिक्स कर लोगे देन यू विल बी वेरी गुड विद मैट्रिसेस का पार्ट, राइट? कमिंग ऑन टू डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड क्रेमर्स रूल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ होती है कि एनसीईआरटी के जो प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी को लोग एमसीक्यू में कन्वर्ट करके पूछते हैं इन मल्टीपल स्पीड बेस्ड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स. आई हैव सीन इट एंड येस आई हैव जस्ट पेस्टेड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट. तुम्हें ऐसा देंगे और ऐसे 4 ऑप्शन देंगे एंड दिस वन इज गोइंग टू बी करेक्ट. सो इसके एनसीईआरटी के प्रूविंग के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आईटीएफ में मोर और लेस सारे टाइप के फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में. तो केवल आईटीएफ और वेक्टर दोनों, आईटीएफ वेक्टर 3D, ऑल्दो वेक्टर 3D इज वेरी ट्रिकी बट इट दैट इज इन एडवांस्ड, बट वेक्टर 3D अगेन इज अ वेरी वेरी सॉलिड चैप्टर व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी, राइट. सारे फॉर्मूलेज, एप्लीकेशन सब कुछ कवर्ड है, एंड इफ यू डू एनसीईआरटी रिलीजियसली then you will pull off something really great in ITF and Vector 3D. Now there are a couple of warnings which I want to give you about maths as a subject, and the first warning is that maths can be very calculative and lengthy, right. सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होगा तुम्हारे बिट्स आर्ट पेपर का, एंड येस इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी, सबसे ज़्यादा वेटेज भी तुम्हें मैथ्स का ही मिलेगा. So what you have to do is that you have to be very selective while attempting the questions. You have to make sure that you attempt the easy questions first और tougher questions को लास्ट में करना है, राइट. तो जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको तुरंत फ्लैग करो और आगे बढ़ जाओ एंड जस्ट सॉल्व द इजी क्वेश्चन फर्स्ट. दैट वे यू आर अलॉटिंग टाइम टू दोज क्वेश्चंस दैट एक्चुअली रिक्वायर टाइम एंड यू आर गेटिंग अ एज बाय सॉल्विंग द इजी क्वेश्चंस. नाउ कमिंग ऑन टू प्रेडिक्टेबल सब टॉपिक्स, मतलब कौन से चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, राइट. और इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्स का ट्रेंड लिया है, बिटसैट का स्पेसिफिकली नहीं लिया, सो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट. बट एनीवेज, सो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो लीनियर एंड बर्नौली आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स. कमिंग ऑन टू क्वाड्रेटिक, तो रूट मैनिपुलेशन क्वेश्चंस, राइट. ऐसा कुछ भी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अब यहाँ पर तुम्हें मैनिपुलेशन लगानी है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है सो दैट इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, राइट. प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, बस इसके फॉर्म में कैसा लाना है. And yes, there will be additional information that will be given in the question, right. So these are root manipulation questions. और quadratic में common roots और LOR के question, location of root भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Now coming on to complex numbers, तो यहाँ पे properties of conjugate, modulus and omega, right. Omega, ये तीन चीज़ बहुत बहुत high chances होती हैं कि speed based examination में तुमसे पूछ सकते हैं. Apart from that, graphs and Euler form is again important, right. Coming on to straight lines and circles, तो अब मतलब ये दोनों में तो भाई कितने सारे फॉर्मूले होते हैं, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट हाँ लोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लोकस को भी करके जाना, राइट. एंड फाइनली कमिंग ऑन टू कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में एसेंट्रिसिटी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस तुम्हें सारे कोनिक के बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए. लैटिस रेक्टम के क्वेश्चंस, फोकाई के क्वेश्चंस, फोकाई के प्रॉपर्टीज, राइट. लैटिस रेक्टम और फोकाई की प्रॉपर्टीज एंड टैंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस, दे हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू अपीयर इन योर पेपर, राइट. तो कोनिक को अगर अच्छा करना है तो ये सारे टॉपिक्स करके चले जाना.